differential equation first order first degree. Our current topic is reducible to linear equation. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म थे dy by dx plus py is equal to q. This is linear in y where p and q are function of x only. Now if the equation is non-linear and particularly in the form of dy by dx plus py is equal to qy to the power n. Here in this, the due to term y to the power n, this is not in a linear form. So we can divide through y to the power n and it should be reduced to the linear form. That's why it is known as a reducible to linear form. This particular standard form also known as a Bernoulli's equation. This Bernoulli's equation are mainly used for fluid dynamics. When we find the kinetics or theory of fluid, so certainly we have to find the flux or other components of the fluids through using Bernoulli's theorem. So this is the standard format of the Bernoulli's theorem. Now we can divide through y to the power n. So this differential equation can be written as 1 upon y to the power n, that is y to the power minus n, plus py to the power 1 minus n is equal to q. Now y to the power 1 minus n, say it is t. Differentiate 1 minus n y to the power 1 minus n minus 1 dy over dx equal to dt by dx. So 1 upon y की power n dy over dx is equal to 1 upon n 1 minus n dt by dx. So just you put the value in the equation number A and it must be reduced into the linear form, then we will get the solution as per the linear equation rule. Let us consider the example x dy over dx plus y is equal to x cube y to the power 6 x square y to the power 6. So here what we can do, 1 upon, first of all, this is dy by dx plus 1 by xy is equal to x square y to the power 6. The question is x cube. Okay. So we can divide x, then we will get x square y to the power 6. Now again we divide by 1 y to the power 6, 1 upon y की power 6 dy by dx plus 1 upon x into y to the power minus 5 and then it is x square.
let y to the power minus 5 equal to t. Minus 5 y to the power minus 6 dy by dx equal to dt by dx. So 1 upon y to the power 6 dy over dx is equal to minus 1 by 5 dt by dx. Minus 1 by 5 dt by dx dt by dx plus t 1 upon x into t is equal to x square. Okay, so this is the linear in t. So dt over dx minus 5 by x into t is equal to minus 5x square. This equation is standard in the form linear in t. P is equal to minus 5 by x, q is equal to minus 5x square. Integrating factor is e to the power integral p dx, e to the power minus 5 log x या आ गया e to the power log x की पावर minus 5 is x की पावर 5 minus 5 be an integrating factor, या भी कह सकते हैं. तो t सोल्यूशन जो है t के लिए लीनियर है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर minus 5 q is equal to minus 5x square dx plus c. t upon x की पावर 5 is equal to minus 5 और ये आ जाएगा x की पावर minus 3 dx plus c. t upon x की पावर 5 is equal to minus 5 x की पावर minus 3 plus 1 that is minus 2 over minus 2 plus c. तो जो रिजल्ट आया वो आया t इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, t इज इक्वल टू जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी थी वो थी हमारे पास 1 अपॉन y की पावर minus 5. तो ये आ गई 1 अपॉन y की पावर 5 और x को हम उधर ले गए तो ये बन गया 5 by 2 x क्यूब प्लस c x की पावर 5. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इस तरीके से जो इक्वेशंस हमारी डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में ना दी हो उसको हम रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके तब निकालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है dy over dx plus y by x equal to y square over x square. इसमें this can be written as 1 upon y square dy by dx plus 1 upon x into 1 upon y is equal to 1 upon x square. डिवाइड किया 1 upon y square से हर तरफ. तो ये आ गया y की पावर minus 2 is equal to t minus 1 upon y is equal to t, y की पावर minus 1 minus 1 y की पावर minus 2 dy over dx is equal to dt by dx. So put the value
1 upon y square dy dx equal to minus dt by dx plus t upon x is equal to 1 upon x square, या लिख सकते हैं dt by dx minus t by x equal to minus 1 upon x square. This is linear in t. जहां पर p बराबर आया माइनस 1 बाई एक्स, q इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना e टू द पावर इंटीग्रल p dx, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स dx is e to the power minus log x या x की पावर माइनस 1. This is an integrating factor. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया. तो सॉल्यूशन जो है 1 अपॉन एक्स टी के लिए लीनियर है, इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी. टी अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 ओवर माइनस 3 प्लस 1, इसको इंटीग्रेट कर दिया, प्लस सी. टी की वैल्यू, टी हमारे पास यहां पर था 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 2, दैट इज माइनस माइनस प्लस, और ये आया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. इस तरीके से, लेकिन ये है इसमें पर्टिकुलरली ये बर्नौली स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, तभी हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे. हर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट रिड्यूस करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कुछ लिमिटेशंस हैं. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, इसको देखें. 1 अपॉन वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 अपॉन वाई 10x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू टी. तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy by dx is equal to dt by dx. dt by dx plus t into 10x is equal to 10 square x. This is linear in t, where p equal to 10x and q equal to 10 square x. Integrating factor e to the power integral p dx, और ये बराबर आया e to the power, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बना वो हमारा बना e की पावर इंटीग्रल 10x ओके. तो यहाँ पर 2 देखिए, 2 रह गया, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन बाई 2 रह गया यहाँ पर, तो 2t 10x आएगा, एक्चुअली ये रह गया, तो ये आया 2 10x, तो 2 log sec x इज sec स्क्वायर x. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. इसको करेक्ट करिए और सॉल्यूशन देखिए. sec स्क्वायर x t के लिए लीनियर है, इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c.
ये बराबर टी इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहां देखें हम अगर 10x बराबर v मान लें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी वी, तो ये बराबर आ जाएगा, ये पूरा बन गया dv के, ये बन गया v के प्लस c, तो t सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू v क्यूब बाई 3 प्लस c। t की वैल्यू कितनी है, t बराबर हमने क्या लिया -1 अपॉन v, सेक स्क्वायर एक्स ओवर -1 अपॉन y इज इक्वल टू व्हाट इज v, v is 10 cube x upon 3 plus c. This is the answer of the given question. इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है। अब एक क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर लॉग x। पहले हम इसको x से डिवाइड कर दें, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर लॉग x अपॉन x। इसके बाद इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये आया माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 upon x into t is equal to log x upon x, dt by dx minus 1 upon x into t is equal to minus log x upon x। ये हमारा इंटीग्रल आ गया, p बराबर यहाँ पर -1 अपॉन x, q इक्वल टू आया माइनस लॉग x अपॉन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर इंटीग्रल -1 अपॉन x dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लॉग x इज इक्वल टू 1 बाई x। सोल्यूशन आया t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर q is equal to minus log x upon x dx plus c. So this is t upon x is equal to, ये आ गया माइनस log x upon x स्क्वायर dx plus c। लेट log x बराबर t, सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सॉरी v मान लो, t तो हमने ऑलरेडी माना है तो इसको v मान लें, तो t अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस, अब log x बराबर v, तो ये तो आ गया v, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी वी, एक x और बच गया नीचे, तो x बराबर होगा e की पावर v, वो आएगा नीचे e की पावर v, तो ये बराबर आया माइनस v इंटू e की पावर माइनस v डी वी। तो t अपॉन एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से इंटीग्रेट करें, माइनस e की पावर माइनस v, इसका इंटीग्रल -1 इंटू v एज इट इज, माइनस इंटीग्रल e की पावर माइनस v ओवर -1, v का डिफरेंशियल आया 1 इंटू डी वी प्लस सी, इंटीग्रल बाई पार्ट्स। तो t हमने क्या माना था, यहाँ पर t हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 अपॉन वाई को, 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू
ई की पावर माइनस वी इंटू वी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और फिर इंटीग्रल करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस वी एक नीचे आएगा, डायरेक्ट लिख दिया हमने, प्लस सी। तो 1/xy इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वी इंटू वी माइनस 1 प्लस सी। अब यहाँ वैल्यू रख दें हम किसकी, v की। तो e की पावर माइनस वी बराबर x है, तो x और log x बराबर v, तो log x माइनस 1 प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम जो है ये रिड्यूसिबल टू जो है लीनियर फॉर्म। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फिर नेक्स्ट आपको मेथड हम नेक्स्ट ऑडियो पीपीटी में बताएंगे। x sin 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y, ये हमारा क्वेश्चन है। कॉस सॉल्यूशन देखें, कॉस स्क्वायर y से डिवाइड करें, सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 2 साइन y कॉस y अपॉन कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये आ गया सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस 2x tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेट tan y इज इक्वल टू t, ये माना हमने। तो सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये आ गया डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज लीनियर इन टी। तो यहाँ पर लीनियर इन टी वेयर p इज इक्वल टू 2x, q इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना e की पावर इंटीग्रल p dx। तो ये आ गया e की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। तो सोल्यूशन आ गया t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q की वैल्यू आई एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी, तो 2x dx इक्वल टू dv। ये सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रल पुट करिए तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स बनेगा। एक्स स्क्वायर बराबर v इंटू वी, और x dx बराबर कितना आया, dv अपॉन 2 प्लस c इंटू टी टू द पावर t इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। t इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब देखें e टू द पावर v का इंटीग्रल e टू द पावर v एज इट इज माइनस e टू द पावर v का इंटीग्रल v का डिफरेंशियल 1 इंटू डी वी प्लस सी। सो t इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या फिर e की पावर v आएगा तो e की पावर v कॉमन लिया अपॉन 2 इंटू वी माइनस 1 प्लस सी। अब वैल्यूज रखिए, हमने t बराबर क्या लिया था यहां पर t बराबर लिया था 10y। 10y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू, और यहां हमने e की पावर v एक्स स्क्वायर बराबर v लिया था, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं 10y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी
अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को रिड्यूसिबल टू फॉर्म करना है। अब नेक्स्ट इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का होगा, वो आपको नेक्स्ट ऑडियो पीपीटी में मिलेगा। थैंक यू।